5.2 question first. Now see, there are certain simple questions. सुरुवातीला जे काय आपण एक्सरसाइज घेतो आहे फर्स्ट एक्सरसाइज किंवा सेकंड एक्सरसाइज, it is based upon some basic concepts from 9 10, and then we will be moving ahead. Okay, so first question is, find the slope of each of the lines which passes through the following points. Okay, so you have to find the slope, and there are 2 points are given, A and B, AB or CD or whatever. So there are 2 points are given. So for 2 point form, or the formula of slope is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. So that is the formula for slope if 2 points are given. So let us take first question of this. A 2 minus 1, B 4 3. Okay, so we can say this is x1 y1, this is x2 y2. So therefore m is equal to what? Y2 minus y1, it means y2 is 3 minus y1. So minus minus, it will become plus 1 upon this is 4 x2 minus x1 is 2. So 3 plus 1, 4 upon 2, which is equal to 2. Okay, third question, E23 comma F2 minus 1. So here also this is x1 y1, x2 y2, and we can find out the slope m as y2 minus y1 upon x2 minus x1. Okay, so this comes out to be minus 4 upon 0, which is not defined. Okay, this is not defined. It means this line or this segment EF is parallel to y-axis. It is parallel to y-axis. So therefore, slope is not defined. Let us take third question. Find the slope of the line whose inclination is 30 degrees. So given is what? Given is inclination, that is theta, which is equal to 30 degree. We have to find out slope. Slope em is nothing but tan theta, that is tan 30 degree. Okay, and tan 30 degree is nothing but 1 upon root 3. Clear? Question number 5. A line makes intercept 3 and 3 on the coordinate axis. Find the inclination of the line. Find the inclination of the line. So it is given, a line makes intercepts 3 and 3 on the coordinate axis. Okay, it means if this is origin, this is x-axis, this is y-axis, x-intercept is 3. So this is 1, 2, 3. This is x-intercept. Let us say A, and whose coordinate are 3, 0. Y-intercept is also 3. So 1, 2, 3. Here we will be getting point B. ठीक, और उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 3, 0 और 0, 3. ठीक, इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 3 है. यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 3, y कोऑर्डिनेट 0. So this is the line for which we have to find out the inclination, that is this theta we have to find out. Now how to find out this theta? देखिए ये जो लाइन है AB, इसका हम स्लोप निकाल सकते हैं यूजिंग 2 पॉइंट, that is x1 y1 and x2 y2. we can find out the slope, और स्लोप का फार्मूला होता है tan theta. so from that we can find out theta. Clear? तो यहाँ पर मैं लिखूंगा A
x1 y1 is nothing but 3 0. Then b x2 y2, it is 0 3. So therefore slope m is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1, which is equal to 3 minus 0 upon 0 minus 3, and this comes out to be 3 upon minus 3, which is equal to minus 1. So this is slope m using given 2 points. ठीक, अब यही स्लोप हम इंक्लिनेशन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? m इज इक्वल टू tan थीटा. ठीक, नीचे मैं लिखता हूं now m is equal to tan theta. So how much is m? m is minus 1. So therefore tan theta is equal to minus 1. tan theta का आंसर हमें कितना मिल जाएगा? -1, क्योंकि स्लोप -1 है, इसका मतलब वो tan theta है. Now using this we have to find out value of theta, that is nothing but the inclination of the line. So this is equal to, now -1 किसका tan होगा? तो हम लिख सकते हैं -1 means tan pi by 4. So this is minus sign and 1 is tan pi by 4. ठीक है, अब tan थीटा नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है. सो यू कैन राइट इट एज tan ऑफ pi minus pi by 4, क्योंकि tan ऑफ pi minus theta becomes minus tan theta. 48 फार्मूले, अलाइड एंगल फार्मूले. पाई है इसलिए tan का tan रह गया, पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होगा. सो on left hand side you are having theta, tan theta. So therefore theta is equal to how much? दोनों तरफ से अगर tan कैंसिल हो जाएगा, so you will get pi minus pi by 4, which is nothing but 3 pi by 4. ठीक है, तो यही हमने JEE पे CET में शॉर्टकट भी देखा हुआ था कि 45 डिग्री जैसे क्रॉस में दो लाइंस आते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव फिर नेगेटिव होता है, फिर पॉजिटिव होता है, फिर नेगेटिव होता है. tan थीटा +1 -1 +1 -1 चारों की जगह पर हम प्रिंसिपल ले रहे हैं, तो फर्स्ट के बाद सेकंड क्वाड्रेंट आपको लेना होगा इसके लिए. So this is question number 5. Let us solve question number 7. Find the slope of the line which makes angle of 45 degree with the positive direction of the y axis. ठीक है, तो जो स्लोप ऑफ द लाइन हमें निकालना है यहाँ पर, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अभी हम स्टार्ट ही कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो एक चीज ध्यान में रखिए, ड्राइंग अगर आप करते हो तो इजीली आप उसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हो, और जो लिखने का काम है वो भी कम हो जाता है ना. थ्योरेटिकली कहानी लिखने से अच्छा है कि आप एक डायग्रामेटिकली पिक्टोरियली उसे रिप्रेजेंट कर दीजिए. थ्योरेटिकली इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ ही है. सो इट इज ऑलवेज इजी टू ड्रॉ पिक्चर. तो आपको डायग्राम निकालना बहुत जरूरी है. यहाँ पर देखिए जैसे मैंने वाई एक्सिस कर दिया एंड द गिवन लाइन इज मेकिंग एंगल ऑफ 45 डिग्री with what? With positive direction of x axis और positive x axis. डायरेक्शन वर्ड नहीं वहां पर, अच्छा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द y axis. ठीक है, इट इज मेकिंग एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द y axis. यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल हो गया, एंड वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट? वी हैव टू फाइंड आउट इंक्लिनेशन और स्लोप निकालना है हमें. वी हैव टू फाइंड आउट स्लोप. Now for finding the slope, this is the inclination, that is theta. Clear? This is inclination theta. अब थीटा आपको कैसे मिलेगा? यहाँ पर देखिए ओरिजिन है, so this is right angle. This angle is 45 डिग्री, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री होगा. वर्टिकली अपोजिट एंगल, these two are vertically opposite angle. ठीक, so therefore फ्रॉम फिगर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, फ्रॉम फिगर थीटा इज इक्वल टू हाउ मच?
90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। रीजन यहाँ पर 11 के पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी नहीं है, बट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए लिख लीजिए, दिस इज विच थ्योरम, दिस इज रिमोट, ये पे लिख लेता हूँ, बाय रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। दिस इज रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। Any external angle is equal to sum of remote interior angles. So ये exterior हो गया थीटा, which is equal to sum of remote interior, that is 90 plus 45. So inclination हमें मिल गया, हमें तो slope ढूंढना है, नीचे हम लिखेंगे therefore slope m is equal to what, tan theta, which is equal to tan 90 degree plus 45. थीटा की वैल्यू है 90 plus 45. नाउ दिस इज इक्वल टू, अब देखिए tan ऑफ 90 प्लस थीटा 90 है, इसका मतलब tan का हो जाएगा क्वाड 45। क्वाड्रेंट कौन सा है, 90 प्लस थीटा, इट मींस इट इज सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, तो आंसर हमारा हो जाएगा -1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। ठीक है, एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स A and B, तो दो पॉइंट दिए हुए हैं A and B, and we have to find out the acute angle between x axis and the line। अब मैं अगर यहाँ पर चलिए ग्राफ निकालना है, तो यहाँ पर ग्राफ छोटा हो जाएगा, इधर ही मैं सॉल्व करता हूँ। 9th क्वेश्चन के लिए मैं ग्राफ यहाँ पर निकालता हूँ। अब पॉइंट कौन से यहाँ पर A और B, A इज हाउ मच, 3 - 1 4 -2, 3 - 1 4 -2, तो 3 - 1 कहाँ पर होगा, लेट अस से 1 2 3, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर हो जाएगा A 3 - 1। ठीक, आपको ग्राफिकली एकदम एग्जैक्ट स्केल लेकर नहीं निकालना है, बट फिर भी आप अप्रोक्सीमेट निकालेंगे। 3 - 1 है, आप ये पॉइंट इधर दिखा देंगे तो फिर वो ठीक नहीं होगा। ठीक, आपको अच्छे से इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाएंगे। 3 - 1 है मतलब एक्स पॉजिटिव है, वाई निगेटिव है। ठीक, उसके बाद दूसरा पॉइंट बी है 4 - 2, 4 - 2 मतलब वो इसके और आगे होगा 4 और यहाँ पर नीचे होगा, तो दिस इज पॉइंट बी 4 - 2। ये हो जाएगी आपकी लाइन ए बी। ठीक है, दिस इज द लाइन ए बी, and we have to find out the acute angle made by this line, acute angle made by this line with x axis। अब देखिए यहाँ पर जो है, दिस इज व्हाट, दिस इज इंक्लिनेशन थीटा, दिस इज इंक्लिनेशन थीटा, बट दिस इज आल्सो द एंगल मेड बाय दिस लाइन विद द x एक्सिस। ये भी एंगल है x एक्सिस के साथ, लेकिन हमें कौन सा पूछा गया, एक्यूट एंगल, एंड ऑब्वियसली दिस इज व्हिच एंगल, दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल। देखिए ये ग्रेटर देन 90 है, तो दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल, तो हमें एक्यूट एंगल कहाँ पर मिलेगा, दिस वन, लेट अस से अल्फा, एंड दिस इज एक्यूट एंगल। यहाँ पर मैं ओरिजिन दिखा देता हूँ, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई। ठीक, तो अब ये कैसे मिलेगा, तो पहले तो हम थीटा ढूंढेंगे। कैसे, इस क्वेश्चन में किया था हमने, यहाँ पर दोनों पॉइंट से आप स्लोप निकाल लेंगे और स्लोप को tan थीटा करके आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम पहले इन दोनों पॉइंट से स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप m इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। x1 y1 x2 y2 किसको बोलना है, ए है, आप x1 y1 बोलिए, लेकिन आप ये भी कर सकते हैं कि इसे x2 y2 किया, इसे x1 y1 किया, तो ये चॉइस आपके पास होता है। बट कुछ डिनोशंस होते हैं, जैसे अगर हमने ए और बी बोला है, तो ए को हम बोलेंगे x1 y1, दिस इज x1 y1, बी को बोलेंगे x2
y2. ठीक, we'll use here y2 minus y1. So y2 is this -2 minus minus plus 1, -2 minus minus plus 1 upon x2 minus x1, 4 minus 3. ठीक, so -2 plus 1 is how much? It is -1 upon 1, which is equal to -1. तो स्लोप m कितना हो गया? -1. Again, slope is nothing but tan theta. So therefore, tan theta equal to how much? -1. अब tan theta -1 कब होता है? माइनस tan π/4. मतलब कि हुआ tan ऑफ पाई माइनस π/4. क्लियर? tan of pi minus π/4 is minus tan π/4. सो यहाँ पर दिस इज इक्वल टू इधर हो जाएगा tan 3 π/4 and therefore theta is equal to how much? Theta is equal to 3 π/4, which is nothing but 135 degrees. We generally हम इंक्लिनेशन डिग्रीज में देते हैं, इंक्लिनेशन हम डिग्रीज में देते हैं. ठीक, तो थीटा कितना हो गया? 135 डिग्री. अब हमें चाहिए एक्यूट एंगल अल्फा. सो देयरफॉर एंगल, या फिर मैं लिखता हूं एक्यूट एंगल मेड बाय द लाइन विथ एक्स एक्सिस. ठीक है, एक्यूट एंगल मेड बाय द लाइन विथ एक्स एक्सिस व्हिच इज अल्फा is equal to 180 degrees minus theta. By which formula? By linear pair. Just for your information. तो जरूर नहीं लिखना, बट आपकी इंफॉर्मेशन. 180 minus theta. So it is how much? 180 minus theta 135 है. So this comes out to be 45 degrees. If the points A, H0, B0K, C, AB lie on a line, then show that A upon H plus B upon K is equal to 1. So this we have to prove. A, B, C, all these 3 points lie on a line. यहाँ पर लिख देते हैं हम, since A, B, C are collinear. ठीक है, तीनों भी पॉइंट कैसे है? कोलिनियर है. They are lying on the same line. It means what? It means slope of AB is equal to slope of BC. देखिए, कोलिनियरिटी चेक करने का ये भी एक तरीका है, क्योंकि इसके पहले हमने एक मेथड सीखा है कोलिनियरिटी चेक करने का. कौन सा मेथड था? इन तीनों का हम लेते हैं डिटर्मिनेंट. x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, डिटर्मिनेंट लिया, और अगर वो 0 आ गया तो इट मींस ABC आर कोलिनियर. ठीक है, बट यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से अगर करना है इसे, तो हम कैसे करेंगे? इफ ABC आर कोलिनियर, इट मींस स्लोप ऑफ AB एंड स्लोप ऑफ BC इज इक्वल. क्योंकि ये पॉइंट ऐसे होंगे, यहाँ पर होगा A, इधर B, इधर C. तो जो स्लोप AB का होगा वही स्लोप BC का होगा. आप ये भी बोल सकते हैं कि वही स्लोप AC का भी होगा. ठीक, लेकिन तीनों लेने की जरूरत नहीं, हम कोई भी दो ले सकते हैं. AB और BC जनरली हम लेते हैं, तो तीनों पॉइंट वहां पर कवर हो जाते हैं. ठीक, चलिए अब स्लोप ऑफ AB और BC कैसे निकलेगा? मैं यहाँ पर फार्मूला लिख लेता हूं. फार्मूला इज व्हाट? m is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. So therefore अब स्लोप ऑफ AB, तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा. y2 minus y1 it k minus 0 डिनोमिनेटर में, x2 minus x1 0 minus h
इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, तो अब ये x1 y1 ये x2 y2 लेंगे आप, तो b माइनस के अपॉन a माइनस 0. Let us simplify this to show that जो भी हमें प्रूव करना है. So therefore this is k minus 0 is k, 0 minus h b minus k अपॉन a. ठीक है. अब हमें जो रिजल्ट चाहिए वो किस टाइप में, देखिए a अपॉन एच प्लस समथिंग. तो अगर मैं इस a को इधर लेके आता हूँ, ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ पर आ गया न्यूमरेटर में अपॉन एच तो है ही, इज इक्वल टू ये माइनस साइन अगेन क्रॉस हो जाएगा, तो माइनस बी माइनस माइनस प्लस के. ठीक है, और के इधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, माइनस साइन इधर चला गया तो b माइनस के का माइनस बी प्लस के हो गया, के यहाँ से यहाँ पर आ गया, a और k एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में है. सो देयरफॉर व्हाट, a अपॉन एच इज इक्वल टू, अब k दोनों को डिवाइड करेगा, पहले को डिवाइड किया तो हो गया माइनस बी अपॉन के प्लस के अपॉन के इज 1, माइनस बी अपॉन के लेफ्ट हैंड साइड पे, and hence proved. Now let us start with equation of a line in different form. Equation of a line in different form. So a line can be expressed in different formats. ठीक है, एक तो होता है जनरल फॉर्मेट दैट वी हैव सीन अप टू 9th and 10th, वी हैव सॉल्व लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. ठीक, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमने सॉल्व किया हुआ है, तो उसमें जो इक्वेशंस होते थे दे आर नथिंग बट व्हाट, दे आर इक्वेशंस ऑफ ए लाइन, दे आर इक्वेशंस ऑफ ए लाइन एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशंस. ठीक, तो जनरल फॉर्म हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जो कि आगे हम पढ़ने वाले हैं, बट यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एक बार, आपको मालूम हो इसलिए. जनरल फॉर्म इज x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. So this is the general form of equation of a line, but in this equation of a line, a and b are not simultaneously 0. ठीक है, a और b दोनों भी simultaneously 0 नहीं हो सकते. a 0 हो सकता है फिर b नहीं होगा, b 0 हो सकता है फिर a नहीं होगा. ठीक, तो दोनों में से कोई भी एक 0 हो सकता है, दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते. सी के लिए मैंने कुछ लिखा ही नहीं, इसका मतलब क्या है कि सी कैन बी 0 कैन नॉट बी 0, डिपेंड्स. तो ये सारे फॉर्मेट्स हम आगे पढ़ने ही वाले हैं, बट जस्ट मैंने आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया, दिस इज लाइन ऑन ए कोऑर्डिनेट प्लेन, इट मींस ऑन ए एक्स वाई प्लेन. ठीक है, तो अब दिस लाइन कैन बी एक्सप्रेस इन डिफरेंट फॉर्मेट्स. देखिए जैसे कि हमारा होता है, हमारे नाम है, ठीक है, प्रमोद मराठे, तो इसको अलग अलग तरीके से लिखा जाता है. आपने फॉर्म फिल किया होगा, फिर किसी फॉर्म में क्या होता है, पहले नेम फिर मिडल नेम फिर सरनेम. कहीं पर हम जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं, पहले सरनेम फिर नेम फिर मिडल नेम. कहीं पर क्या होता है, ओनली इनिशियल्स PR मराठे, इस तरीके से भी होता है. सो ये सारे जो फॉर्मेट्स है, दे आर व्हाट, दे आर डिनोशन ऑफ माय नेम इन डिफरेंट फॉर्मेट्स. नाम तो वही है, नाम तो चेंज नहीं होना है, नाम वही है, बट इट इज रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट फॉर्मेट्स. So similarly, equation of a line can also be written in different formats depending upon what is given. Given क्या है उसके ऊपर आप डिसाइड कर सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखना है. ठीक, so before that let us start with some basic equations. So first one is equation of x-axis. First one is equation of x-axis. Now equation of x-axis is y is equal to 0, because all the points on the x-axis are nothing but
they are all points are having coordinate y coordinate as 0. So equation of x axis is y is equal to 0. Similarly, अगर मैं लिखूं इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, ठीक, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा x इज इक्वल टू 0. इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इज इक्वल टू 0. Next, let us write down equations of lines which are parallel to the coordinate axis. मैं लेता हूँ equations of lines parallel to coordinate axis. अब coordinate axis मतलब कौन से, x axis एंड y axis. इन लाइंस को, जो भी लाइंस पैरेलल होंगे उसके इक्वेशन कैसे दिए जाते हैं. तो बिफोर दैट फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड दिस टू. ठीक है, एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिए. एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू 0, वाई एक्सिस का होता है x इज इक्वल टू 0. जैसे मैंने यहाँ पर, अब मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम निकालता हूँ. दिस इज ओरिजिन, दिस इज एक्स एक्सिस. अब इस एक्स एक्सिस पर आप कोई भी पॉइंट प्लॉट करिए, उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, 0 होगा. सो देयरफॉर एक्स एक्सिस इज नथिंग बट y इज इक्वल टू 0. y एक्सिस पर अगर हम कोई भी पॉइंट प्लॉट करते हैं तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा. सो दैट्स व्हाई इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इज इक्वल टू 0. अब हम ढूंढना है इक्वेशन ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस. अब मैं यहाँ पर 4 लाइन निकालता हूँ. देखिए पहले तो मैं y एक्सिस को पैरेलल, ये लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया. दिस लाइन इज पैरेलल टू y axis. Let us say it is at a distance of h from origin. ये डिस्टेंस h अभी आपका क्या हो गया, फिक्स हो गया. डिस्टेंस h आपका फिक्स हो गया. सो इक्वेशन ऑफ दिस लाइन व्हिच इज पैरेलल टू y axis. ठीक, so equation of a line which is parallel to y axis is similar to this. ये x is equal to 0 था, ये हो जाएगा x is equal to h. Equation of this line is x is equal to h, because all the points on this line will have x coordinate as h. ठीक, अब सेम लाइन h डिस्टेंस पर मैं इधर निकालता हूं. दिस लाइन इज आल्सो पैरेलल टू y एक्सिस. ठीक है, ये लाइन भी पैरेलल टू y एक्सिस है. इट इज आल्सो एट अ डिस्टेंस ऑफ h फ्रॉम द ओरिजिन. ठीक, but this line is now on the negative side of x axis. ठीक है, x के नेगेटिव साइड पर है. दिस लाइन इज ऑन नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस. तो यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ये है. देखिए डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, मैंने कल भी बताया था. डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. ये डिस्टेंस तो पॉजिटिव है, h डिस्टेंस है. बट जब आप यहाँ पर पहुंचते हो तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यू विल गेट माइनस h ओवर हियर. -1, -2, -3, -4, all the x coordinates are negative on negative x axis. तो यहाँ पर हो जाएगा x is equal to -h. ठीक, so equations of lines which are parallel to y axis is given by x is equal to h और x is equal to -h. ठीक, अब मैं निकालता हूँ lines which are parallel to x axis. यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर दिया. Now this line is parallel to x axis. Let us say this is at a distance of k from the origin or from the x axis. ये डिस्टेंस कितना है आपका k. ठीक, तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा इस फॉर्मेट में. इक्वेशन ऑफ x एक्सिस अगर y इज इक्वल टू 0 है तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज y इज इक्वल टू समथिंग. और y इज इक्वल टू समथिंग मतलब कितना है, y इज इक्वल टू, यहाँ पर y इज इक्वल टू k है. x की वैल्यू इस लाइन के ऊपर, x की वैल्यू चेंज होती जाएगी. देखिए यहाँ पर x की वैल्यू अलग है, मान लीजिए 1 है, यहाँ पर 2 हो सकती है, यहाँ पर 3 होगी. x इज वेरिंग बट y इज नॉट वेरिंग, y इज फिक्स्ड. y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का भी k है, इसका भी k है, इसका भी k है. इधर आप देखेंगे तो उसका y कोऑर्डिनेट भी k है. x नेगेटिव हो गया लेकिन y कोऑर्डिनेट
k है, ठीक। ऑन द सिमिलर ग्राउंड्स इतना ही डिस्टेंस लेट अस से k लेकर के मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। नाउ दिस लाइन इज ऑल्सो पैरेलल टू x एक्सिस एंड लेट अस से इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ अगेन k। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, ध्यान में रखना है। इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ k फ्रॉम x एक्सिस बट ऑन नेगेटिव साइड। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस के, ठीक। तो हमने यहाँ पर ऑल द लाइंस पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, these two lines are parallel to x axis, horizontal lines, and these two lines are parallel to y axis, vertical lines। पैरेलल टू y एक्सिस अगर होगा तो x इज इक्वल टू h, x इज इक्वल टू माइनस h, ठीक। पैरेलल टू x एक्सिस होगा तो y इज इक्वल टू k, y इज इक्वल टू माइनस k। इस टाइप से हमें इक्वेशंस मिलते हैं, ठीक है। अब मेरा सवाल आपसे ये है, यहाँ तक क्लियर है क्या बताइए पहले, फिर मैं आगे आपसे सवाल पूछता हूँ। अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे जानना है, ये जो भी पॉइंट मैंने मार्क किया इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताइए। पॉइंट मैंने मार्क कर दिया है, कोऑर्डिनेट बताना है आपको। नो पायल, नो कल्याणी। अच्छा वो कल्याणी आपने कुछ अलग समझ लिया, ऑडियो शायद आप तक नहीं पहुंच पा रहा था क्या। वैष्णवी करेक्ट, कल्याणी हाफ करेक्ट, कुछ मिस्टेक आपका अंडरस्टैंडिंग में हुआ। पायल नॉट करेक्ट, प्रणव नहीं, मंदार करेक्ट। वीडियो ऑफ, कौन है वीडियो ऑफ, अपेक्षा। आपका कुछ नेट का प्रॉब्लम है लगता है, एक बार चेक कर लीजिए। क्लोज ऑल द एप्स, रिस्टार्ट द नेट वगैरह 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 जो भी बताया हुआ है। यस आचल, इट्स एच के, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जो पॉइंट मैंने प्लॉट किया हुआ है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे h कॉमा k। पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप कैसे देते हैं, पहले लिखते हैं हम x कोऑर्डिनेट। अब देखिए x कोऑर्डिनेट कितना है h, दिस डिस्टेंस इज हाउ मच इट इज h, तो पहले आएगा h, दिस इज नॉट 4, दिस इज h, ठीक। और फिर y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का, y कोऑर्डिनेट मतलब दिस वर्टिकल डिस्टेंस इज हाउ मच इट इज k, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे h कॉमा k। क्लियर। तो इसी तरीके से हम सारे पॉइंट्स के लिख सकते हैं। अगर मुझे यहां पर लिखना होगा, ठीक है, इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट चाहिए तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखिए एच तो है लेकिन माइनस एच है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एच कॉमा के। यहाँ पर आप जाएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट देखिए एक्स वाई दोनों नेगेटिव होते हैं, आपको मालूम है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव फिर नेगेटिव नेगेटिव। यहाँ पर कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, माइनस एच, एक्स कोऑर्डिनेट होगा माइनस एच, y कोऑर्डिनेट होगा k नेगेटिव डायरेक्शन में मतलब माइनस के, ठीक। तो इस तरीके से आप कोऑर्डिनेट सब पॉइंट्स के निकाल सकते हैं, क्योंकि ये नॉलेज होना भी जरूरी है कि कोऑर्डिनेट्स आपको कैसे मिलेंगे, क्योंकि टॉपिक ही हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो दीज आर इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। नाउ अब इसके बाद एक्चुअल में स्टार्ट होते हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइंस, ठीक है, डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइंस। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट लिखता हूँ, हालांकि 1 2 3 के बाद 4 आना चाहिए, बट मैंने फर्स्ट लिखा बिकॉज दीज आर द डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ राइटिंग एनी लाइन अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा। ओके, जैसे फर्स्ट है हमारा स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म से कुछ याद आ गया, देखिए ये जितने भी सारे फॉर्मेट्स है ना, देयर नेम इंडिकेट्स इटसेल्फ कि वो क्या चीज डिनोट करते हैं। अगर किसी लाइन का आपको स्लोप मालूम है, उस लाइन के ऊपर का
एक पॉइंट मालूम है, सो यू कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म। ठीक है, तो जनरली हम बोलते हैं किसी नाम में क्या रखा हुआ है ना? शेक्सपियर ने बोला था, तुकाराम महाराज ने बोला था, डजंट मैटर, क्योंकि नाम में क्या रखा है। अगर शेक्सपियर ने ही बोला तो हम ये क्यों याद रखें, क्योंकि शेक्सपियर ने क्या बोला, नाम में क्या रखा है, तो फिर नाम उसका भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक, लेकिन अगर आप नाम ठीक से देखेंगे तो वहीं से आपको बहुत सारे हिंट्स मिलते हैं। चैप्टर्स के नेम भी उसी तरीके से होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, चैप्टर का नाम बहुत बड़ा है ना? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, बट द नेम इटसेल्फ सजेस्ट व्हाट एग्जैक्टली यू आर स्टडिंग। यू आर स्टडिंग लीनियर इक्वेशंस, तो लीनियर इक्वेशंस तो भाई थ्री वेरिएबल्स में भी होते हैं। अभी बता दिया था मंदार ने, मैंने लाइन का इक्वेशन पूछा तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो। इट इज अ लीनियर इक्वेशन बट इट इज नॉट इन टू वेरिएबल्स, इट इज इन थ्री वेरिएबल्स। ठीक है, तो उस टाइप से नाम अगर हमको अच्छे से समझ में आ जाता है तो वहां से आपको एक हिंट मिल जाती है कि किस तरीके का फॉर्मेट होगा। यहाँ पर स्लोप पॉइंट फॉर्म है। ठीक, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म मतलब क्या होगा कि आपको स्लोप और पॉइंट मालूम होगा। मान लीजिए यहाँ पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, ठीक, और एक लाइन मैंने ये वाला ड्रॉ कर दिया। अब इस लाइन का इक्वेशन मुझे निकालना है। इस लाइन का स्लोप यम है, मालूम है मुझे कि स्लोप कितना है, यम, दिस इज गिवन। सेकंड थिंग, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है ए जिसके की कोऑर्डिनेट है x1 y1। ठीक, और फिर इस लाइन के ऊपर एक जनरल पॉइंट होता है। देखिए जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट मींस यू कैन वेरी इट एनीवेयर, आप उसे कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। सो दैट इज अ जनरल पॉइंट पी, एक्स कॉमा वाई। ये दिखाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए बताया। तो अब हमें एक्स और वाई में एक रिलेशन ढूंढना है। एक्स और वाई में एक रिलेशन ढूंढना है सच दैट इट विल सेटिस्फाई ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन। स्लोप कितना है, यम। इस लाइन के ऊपर का एक पॉइंट आपको मालूम है x1 y1। देन स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन हो जाता है y माइनस y1 इज इक्वल टू यम इन ब्रैकेट x माइनस x1। So here what we will do, we will put value of x1 y1 from this। x1 और y1 की वैल्यू डालेंगे, m की वैल्यू डालेंगे। x और y will be variables, it will remain variables because then only you will get some relation between x and y। ठीक, so this is the first format, slope point form। Second one, different formats of equations of a line। Second form, okay, now before adding second form मैं एक चीज और लिख लेता हूँ। अगर ये लाइन ओरिजिन में से पास हो रही होगी तो एक लिख लेता हूँ, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन and having slope m। just a second। so now equation of line passing through origin and having slope m। आता ओरिजिन मधून पास होते म्हणजे आता अर्थ काय, x1 y1 will become 0, x1 and y1 will become 0, so it will become y minus 0, that is y y is equal to mx, because x1 y1 is 0, it is passing through the origin, it means value of x1 y1 is 0 0। so here also 0, here also 0, so y minus 0 is y, x minus 0 is x, so y is equal to mx। so it is the equation of a line which is passing through the origin। now next, चलिए मैं इधर लिख लेता हूँ इसको। सेकंड फॉर्मेट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म।
अब इस फॉर्म में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको क्या मालूम होना चाहिए, स्लोप मालूम होना चाहिए और इंटरसेप्ट। अब यहाँ पर ध्यान देना, इंटरसेप्ट मतलब कौन सा, आपको चाहिए वाई इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट से नहीं निकाल पाएंगे, आपको चाहिए वाई इंटरसेप्ट। ठीक, वी आर टॉकिंग अबाउट वाई इंटरसेप्ट हियर। सो लेट अस से अगेन, दिस इज ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये लाइन है कोई भी जिसका स्लोप आपको मालूम है यम है, स्लोप कितना है यम, एंड वाई इंटरसेप्ट इज दिस मच डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड एज वाई इंटरसेप्ट। ठीक, तो वाई इंटरसेप्ट जो है इसका, लेट इट बी सी, वाई इंटरसेप्ट सी होगा। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दिस इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट वन, थर्ड, दैट इज 2 पॉइंट फॉर्म। थर्ड वन, 2 पॉइंट फॉर्म। अगेन द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि आपको क्या मालूम होना चाहिए, तो उस लाइन के ऊपर के आपको 2 पॉइंट मालूम होने चाहिए। सो इफ वी नो 2 पॉइंट्स ऑन एनी गिवन लाइन, ऑन एनी लाइन, देन वी कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब यहाँ पर 2 पॉइंट कैसे होंगे, लेट अस से, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, इधर ओरिजिन, इधर वाई एक्सिस, कोई भी एक लाइन जैसे मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक, अब देखिए मैं जनरल पॉइंट कहीं पर भी दिखा नहीं रहा हूँ, जनरल पॉइंट तो होता ही है पी एक्स वाई, तो ये तो जनरल पॉइंट होगा, जनरल पॉइंट ऑन द लाइन, जिसमें कि हमें आंसर मिलता है, एक्स और वाई इसमें रहेगा। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो एक्स और वाई है, इधर भी आप देखेंगे तो एक्स और वाई विल बी देयर। ठीक है, अब 2 पॉइंट फॉर्म में क्या होता है, वी नो 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन, लेट अस से दिस पॉइंट ए इज x1 y1, another point b is also known which is x2 y2, ये दोनों पॉइंट्स आपको मालूम है, दिस इज गिवन। Then by 2 point form, equation of line is y minus y1 upon y1 minus y2 is equal to x minus x1 upon x1 minus x2। ठीक, अब जनरली आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो इस क्वेश्चन को, मतलब इस इक्वेशन को अलग तरीके से भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर y2 माइनस y1 लेते हैं तो ऑब्वियसली इधर भी आपको लेना होगा x2 माइनस x1। क्लियर, यहाँ पर अगर आप y2 माइनस y1 लिखते हैं तो इधर आपको लिखना होगा x2 माइनस x1, तो दोनों तरफ आपको सिमिलैरिटी मेंटेन करना है, देन ओनली यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अगेन सेम थिंग इज देयर, x1 y1 किसे बोलना है, आपके आपका चॉइस होता है। ठीक, ए और बी मेंशन है तो ठीक है, आप ए को x1 y1 बोलेंगे, बी को x2 y2 बोलेंगे, लेकिन कभी कभी ए बी ऐसा मेंशन भी नहीं होता है, so it's your choice। So x1 y1 x2 y2 can replace themselves, they can be interchanged with themselves, but format आपको ध्यान में रखना है, y minus y1 upon y1 minus y2, x minus x1 upon x1 minus x2, या फिर आप अलग तरीके से इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन अब इस वाले क्वेश्चन में एक कंडीशन आ जाती है, जहां पर भी डिनोमिनेटर आ जाएगा तो कंडीशन तो आ ही जाएगी। कंडीशन क्या होगी, कंडीशन यहाँ पर होगी y2 is not equal to y1 and x2 is not equal to x1। ठीक है, अगर ऐसा हो जाएगा तो सारा जीरो हो जाएगा, ये भी डिनोमिनेटर में जीरो, इधर भी जीरो, तो ये जीरो इधर मल्टीप्लाई होकर जीरो हो गया, ये जीरो इधर मल्टीप्लाई होकर जीरो हो गया, तो हाथ में कुछ नहीं, आंसर सारा जीरो जीरो हो गया। ठीक, ये कंडीशन होगी। So this is 2 point form। तो यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फोर्थ फॉर्मेट इज डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, अब डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में यू शुड नो बोथ द इंटरसेप्ट, कौन से इंटरसेप्ट होते हैं, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। अगर आपको मालूम है देन यू कैन ऑल्सो राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ ए
लाइन। जिसमें यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, ये लाइन मैंने ड्रॉ किया। ठीक, अब इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट ए है, दिस इज एक्स इंटरसेप्ट, दिस डिस्टेंस इज एक्स इंटरसेप्ट विच इज नथिंग बट ए। यहां से यहां तक जो होगा दिस इज वाई इंटरसेप्ट, लेट इट बी बी। लिख लेता हूं, तो इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए कॉमा जीरो। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे जीरो कॉमा बी। एक्स इंटरसेप्ट हमें मालूम है, इट इज ए, y intercept is also given as b, then equation of line is x upon a plus y upon b is equal to 1। ठीक, x upon a plus y upon b equal to 1। दोनों इंटरसेप्ट आपके a और b गिवन में होने चाहिए। अब अगेन यहाँ पर डिनोमिनेटर आ गया, तो इसका मतलब एक कंडीशन होनी चाहिए, a नॉट इक्वल टू जीरो, b नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, so this is equation of a line in double intercept form, x upon a plus y upon b equal to 1। Let us take fifth format, this is normal form, normal form। अब ये नॉर्मल कौन सा है, इंग्लिश का वर्ड जो होता है नॉर्मल, ठीक है, कर्व कैसा है, बस नॉर्मल, ठीक है, ठीक ठाक है, नॉर्मल है, सो इट इज नॉट दैट नॉर्मल। ठीक, ये नॉर्मल होता है मैथमेटिकली, नॉर्मल मीन्स अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन। ठीक है, नॉर्मल इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन, देन इन दैट केस वी कैन राइट डाउन द नॉर्मल फॉर्म। मान लीजिए मैं इसी तरीके से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन निकाल लिया हमने, फिर यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, दिस इज द लाइन फॉर विच वी नीड टू फाइंड आउट द इक्वेशन। ठीक है, अब अगर इस लाइन के ऊपर ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर में ड्रॉ करता हूँ, ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया, लेट इट बी ओ एम। सो ओ एम इज नथिंग बट नॉर्मल टू द लाइन। मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर टू द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। तो यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, लेंथ ऑफ नॉर्मल ओ एम, लेट इट बी पी। ठीक, तो यहाँ पर ओ एम विच इज इक्वल टू पी। ठीक, एन एंगल मेड बाय दिस नॉर्मल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज लेट अस से अल्फा। ये तो हो गया पी, नॉर्मल टू द लाइन विच इज इक्वल टू पी, इधर ही लिख लेता हूँ, ओ एम इज नथिंग बट नॉर्मल टू द रिक्वायर्ड लाइन। जिस लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है उस लाइन को एक नॉर्मल हमने ड्रॉ किया, मतलब कि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कहां से, ओरिजिन से। और ये जो नॉर्मल है उसकी लेंथ कितनी है, ओ एम, दैट इज लेट अस से पी। एंड अल्फा इज व्हाट, अल्फा इज द एंगल मेड बाय नॉर्मल with x axis, alpha is the angle made by normal with x axis। then इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाता है आपका x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा is equal to p, so that is the equation of a line in normal form।
कुछ डाउट है यहाँ तक? सो देयर आर टोटल 5 फॉर्म्स। ठीक है, हमने टोटल 5 फॉर्म देखे। कौन कौन से? स्लोप, इंटरसेप्ट, स्लोप, पॉइंट, डबल पॉइंट, डबल इंटरसेप्ट, मदर। So we have seen 5 different formats of a line, ठीक है, ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइन। एक तो जनरल फॉर्मेट तो है ही, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, दैट इज जनरल फॉर्मेट। 5 डिफरेंट फॉर्म हमने देखे। कौन कौन से? स्लोप, पॉइंट, दूसरा स्लोप इंटरसेप्ट, फिर तीसरा डबल पॉइंट, फिर चौथा डबल इंटरसेप्ट, पांचवा नॉर्मल। देखिए आप ध्यान में रख सकते, स्लोप पॉइंट, स्लोप इंटरसेप्ट, फिर डबल पॉइंट, डबल इंटरसेप्ट, फिर नॉर्मल। ठीक है, तो 5 तरीके से हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं। एंड इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, कौन सा फॉर्म लेना। इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज गिवन। अगर आपको लेंथ ऑफ नॉर्मल और एंगल मेड बाय द नॉर्मल गिवन है तो आप नॉर्मल फॉर्म यूज करेंगे। अगर आपको एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट गिवन है तो आप डबल इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करोगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रेट लाइन। देयर इज वन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक, अब देखिए एक लाइन जो होती है, एनी लाइन डिवाइड्स द प्लेन इनटू 2 पार्ट्स। क्या बोला मैंने? एनी लाइन डिवाइड्स द प्लेन इनटू 2 पार्ट्स। जरूरी नहीं इक्वल होंगे, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ऐसा मैंने नहीं बोला। मैंने बोला कि इट विल डिवाइड द प्लेन इनटू 2 पार्ट्स। अब प्लेन क्या हो सकता है? जैसे मैंने यहाँ पर एक प्लेन ड्रॉ किया, दिस इज एक्स वाई प्लेन। और अगर मैं कोई भी एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, सो दिस प्लेन हैज, वी से दैट दिस लाइन हैज डिवाइडेड द गिवन प्लेन इनटू 2 पार्ट्स। एक तो पार्ट कौन सा हो गया? इधर वाला। एक पार्ट कौन सा हो गया? इधर वाला। ठीक है, भारत पाकिस्तान हो गया। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज बाउंड्री ऑफ देम। ये बाउंड्री हो गई। दिस लाइन इज व्हाट, इट इज अ बाउंड्री। और इसके इधर एक पार्ट होगा, इधर एक पार्ट होगा। क्लियर? सो एनी लाइन डिवाइड्स द प्लेन इन 2 पार्ट्स। अब प्लेन देखिए, प्लेन कोई मतलब ये इतना ड्रॉ किया तो इतना ही प्लेन नहीं है। यहाँ पर एरो है, सो इट कैन गो अप टू इंफिनिटी। ये भी नीचे भी एरो है, नीचे भी इंफिनिटी पे जाएगा, इधर भी, इधर भी। सो इट इज अ इनफाइनाइट प्लेन, व्हाट यू कैन से। ठीक है, बहुत बड़ा प्लेन होगा। लेकिन उस कितना भी बड़ा प्लेन होने दो, लाइन भी आपकी इनफाइनाइट है। लाइन भी तो इनफाइनाइट है, क्योंकि हम एरो देते हैं। ठीक, तो ये भी इनफाइनाइट है, तो इट डिवाइड द प्लेन इनटू 2 पार्ट्स। अब हमारे लिए कभी कभी ये जानना जरूरी होता है कि कोई एक गिवन पॉइंट लाइन पर है, या फिर लाइन के उधर है, या फिर लाइन के इधर है। जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े कंट्रीज में आजकल चल रहा है, पाकिस्तान भारत का तो चल ही रहा है 1947 से। चाइना और इंडिया का भी चालू हो गया। वही इस लाइन के ऊपर इधर हम है, इधर आप हो, फिर ये पार्ट हमारा है, हमारा है। ठीक है, तो एक डिसाइड करना हमारे लिए कभी कभी बहुत जरूरी होता है। तो इस लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट अगर हमें डिसाइड करना है, अगर हमें लाइन मालूम है और एक पॉइंट है जिसको कि जानना है कि वो लाइन के ऊपर है, लाइन के नीचे है, या फिर लाइन पर है, अगर हमें ये समझना है, so for that we will use some property of straight line. So इसमें हम लिखते हैं for a line x plus by plus c equal to 0 where c is greater than 0। तो ये कंडीशन जरूरी है, आपको c की वैल्यू हमेशा कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर मान लीजिए नेगेटिव होगी तो हम तीनों भी उधर लेके जाएंगे, तो x और y के जो कोएफिशिएंट है a एंड b, दे विल बिकम नेगेटिव, उनके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक, तो c ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर ऐसा है, देन यू कैन डिसाइड अबाउट द पॉइंट x1 y1। ठीक, हम 3 तरीके से डिसाइड करते हैं। देन p x1 y1, p x1 y1 can be determined
ठीक, इस तरीके से लिखता हूं। अब देखिए फर्स्ट इफ इफ समझिए, तो यहाँ पर इफ, अब जो इक्वेशन ऑफ लाइन है जिसमें कि एक्स और वाई है, विल रिप्लेस दिस एक्स बाय एक्स वन, विल रिप्लेस दिस वाई बाय वाई वन। ठीक है, तो जब हम एक्स को एक्स वन से रिप्लेस कर देते हैं, वाई को वाई वन से रिप्लेस कर देते हैं, इट मीन्स ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी इज इक्वल टू जीरो अगर आता है तो तो इसका मतलब क्या हुआ, देन एक्स वन वाई वन लाइज ऑन द लाइन। ठीक है, एक्स वन वाई वन लाइज ऑन द लाइन। ये तो बहुत क्लियर चीज हो गई। मतलब क्या हुआ, जनरली हम इसे किस तरीके, अब हम किस लैंग्वेज में बोलते थे उसे, दिस पॉइंट एक्स वन वाई वन सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इट मीन्स इट लाइज ऑन द लाइन। ठीक, अब दो चीजें और है, या तो लाइन के ऊपर होगा या तो नीचे होगा। अब ये जो ऊपर नीचे वाली बात है, ठीक है, ऊपर नीचे वाली जो बात है, दिस इज डिफाइंड बाय विच पॉइंट, ये डिफाइन होता है आपका ओरिजिन के हिसाब से। ठीक है, ओरिजिन के हिसाब से मतलब कि जो भी लाइन है, जो भी लाइन है, हम ये कहते हैं कि दिस लाइन डिवाइड द प्लेन इनटू टू पार्ट्स, आइदर ओरिजिन पार्ट और नॉन ओरिजिन पार्ट। इधर का जो नीचे वाला पार्ट है इसे हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन, क्योंकि लाइन के नीचे ओरिजिन लाई करता है, सो दिस इज ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन। ऊपर होगा तो नॉन ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन। ठीक है, तो यही हमें चेक करना होता है कि लाइन के ओरिजिन साइड पर पॉइंट है या फिर लाइन के नॉन ओरिजिन साइड पर पॉइंट है। सो हियर इट इज, दिस इज ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन एंड दिस इज नॉन ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन। ठीक, और लाइन के ऊपर तो है ही, इट इज पार्ट ऑफ द लाइन, सो इट मीन्स इट लाइज ऑन द लाइन। ठीक, तो चलिए अब दोनों तरीके हम देखते हैं कि ये कैसे डिसाइड होगा। यहाँ पर मैं सेकंड लिखता हूं, इफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी ग्रेटर देन जीरो आता है, इसका जो भी आंसर आएगा अगर ग्रेटर देन जीरो होगा, देन देन पी लाइज ऑन ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन। और थर्ड पॉइंट होगा, if ax1 plus by1 plus c is less than 0, then p lies on non-origin side of the line। ठीक, ग्रेटर देन जीरो आया तो ओरिजिन साइड पर होगा, अगर लेस देन जीरो आया तो नॉन ओरिजिन साइड पर होगा। कौन, ये पॉइंट कौन सा, x1 y1। मतलब फर्स्ट केस में पॉइंट कहां पर है, यहाँ पर है, फर्स्ट केस में दिस इज p, ये फर्स्ट केस में हुआ। सेकंड केस में पॉइंट कहां पर है, लाइज ऑन ओरिजिन साइड, मतलब कि इस लाइन के नीचे किधर भी, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर 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 कहीं पर भी। ऑल दीज आर व्हाट, दीज आर सेकंड केसेस। थर्ड केस में एक्स वन प्लस बी वाई वन, ए एक्स वन है यहाँ पर, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अगर लेस देन जीरो हुआ तो इसका मतलब ये होगा नॉन ओरिजिन साइड, इधर 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 कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, दिस इज थर्ड कंडीशन। So from this we can decide the location or we can decide the position of the point P whose coordinates are x1, y1 with respect to the line. Exercise 5.3. Question first. Write the equation of line.
So we have to write equation of line. First one, parallel to x-axis and at a distance of 5 units from it and above it. ठीक है, parallel to x-axis at a distance of 5 units and above it मतलब अब पॉजिटिव साइड पर है, ठीक है, पॉजिटिव साइड पर है। तो ये लाइन अगर आपको ड्रॉ करनी होगी तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स अबव इट, मतलब इसके ऊपर है 5 यूनिट। यहाँ पर हो जाएगा दिस इज 5 यूनिट। सो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा फिर, y इज इक्वल टू 5। थर्ड वन, जस्ट अ सेकंड। तो हम एक्सरसाइज 5.3 कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 चालू है, जो कि है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। हमने सेकंड लिया था, तो चलिए हम फोर्थ ले लेते हैं। containing the point A35, so it containing the point means what, passing through A35, passing through A35 and having slope 2/3 and having slope 2/3, ठीक है, पासिंग थ्रू A35 एंड हैविंग स्लोप 2/3। तो अब हमें क्या क्या मालूम है, देखिए हमें स्लोप मालूम है और हमें पॉइंट मालूम है, तो हम कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे, ठीक। सो हियर ax1 y1 is equal to 3/5 and slope m is equal to 2/3। so by which form, by slope point form, क्योंकि आपको स्लोप और पॉइंट मालूम है। by slope point form क्या होता है स्लोप पॉइंट फॉर्म, y minus y1 is equal to m in bracket x minus x1। वैल्यूज पुट करेंगे, y minus y1 is how much, it is 5, m it is 2/3 in bracket x minus x1, so x1 is 3। सिंप्लीफाई करेंगे, 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू वाई, 3y माइनस 5 3 15, 2 इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू एक्स, 2x, 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि एक जनरल टेंडेंसी होती है, मतलब पहला जो भी कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, स्टार्टिंग नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो x का कोएफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव आपने लिखना है। तो यहाँ पर x पॉजिटिव है 2x, so keeping it on the right hand side but writing here, so it is 2x, 3y उधर गया तो हो गया माइनस 3y, माइनस 15 उधर गया तो प्लस 15 एंड दिस इज माइनस 6, 15 माइनस 6 इज 9 इज इक्वल टू 0। अब इसी में 6th क्वेश्चन है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मैं यहाँ पर लिखता हूँ पासिंग थ्रू द ओरिजिन and which bisects the portion of the line 3x plus y equal to 6, passing through the origin and bisects मतलब दो इक्वल पार्ट करता है, bisects the portion of the line 3x plus y equal to 6, intercepted between the coordinate axes, intercepted between the coordinate axis
तो अब जिस लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, मतलब कि रिक्वायर्ड लाइन। वो रिक्वायर्ड लाइन किस टाइप में है? इट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ये तो क्वाइट सिंपल है। बट सेकंड कंडीशन क्या है? बाइसेक्ट द पोर्शन ऑफ द लाइन। ये दूसरी गिवन लाइन है, दिस इज गिवन लाइन, इसको बाइसेक्ट करती है, ठीक है। और कौन से पोर्शन में? इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्लियर? तो अब इस लाइन को हम पहले निकालेंगे, थोड़ा सा ग्राफ निकालना पड़ेगा यहाँ पर ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। जैसे मैंने यहाँ पर निकाल लिया एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक, ओरिजिन हो गया। रिक्वायर्ड लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, एक पॉइंट तो एक क्लियर हो गया, ठीक है। एंड दिस रिक्वायर्ड लाइन इज ऑल्सो बाइसेक्टिंग दिस लाइन। तो ये लाइन मुझे ड्रॉ करना होगा। अब ये लाइन कैसे ड्रॉ होगा? 3x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब अगर किसी भी लाइन का आपको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट चाहिए होगा तो आप उस लाइन को लिखेंगे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है, टू फाइंड x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है, अगर आपको y इंटरसेप्ट ढूंढना है तो पुट x इज इक्वल टू 0। अगर आपको x इंटरसेप्ट ढूंढना है तो पुट y इज इक्वल टू 0। दैट इज अनदर मेथड, ठीक। सो हमारा टारगेट यहाँ पर क्या है? लाइन ड्रॉ करना है मुझे, ये वाली लाइन 3x प्लस वाई इक्वल टू 6 इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसका मतलब मुझे इन दोनों के इंटरसेप्ट भी लगेंगे, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। मैं यहाँ पर लिखता हूँ गिवन लाइन, ठीक है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब इसे मुझे कन्वर्ट करना है डबल इंटरसेप्ट में। डबल इंटरसेप्ट क्या होता है? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पर 1 होना, तो हम क्या कर देंगे, इसे डिवाइड बाय 6 कर लेंगे। तो हो जाएगा 3x अपॉन 6 मतलब x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। 6 से डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? x इंटरसेप्ट कितना हुआ? 2, y इंटरसेप्ट कितना हुआ? 6। अब यही चीज मैं बता रहा था कि अगर आपको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट ढूंढना है तो आप x और y की वैल्यू 0 रख करके ढूंढ सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर एक और आपको लिख कर देता हूँ, जस्ट फॉर योर नॉलेज। आप कभी कभी इस तरीके से भी कर सकते हैं, टू फाइंड व्हाट? x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। गिवन लाइन कौन सी है? 3x प्लस वाई इक्वल टू 6, ठीक है, दिस इज गिवन लाइन। यहाँ पर मैंने कर दिया पुट x इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 0 का 3 इंटू 0 0, y इज इक्वल टू 6। सो दिस इज नथिंग बट y इंटरसेप्ट। चेक करिए, है कि नहीं y इंटरसेप्ट 6। दूसरा आप करेंगे पुट y इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा y इक्वल टू 0 किया तो 3x इक्वल टू 6 आएगा। मतलब कि x इक्वल टू, चलिए नीचे ही लिखता हूँ, x इक्वल टू 2 हो जाएगा, विच इज नथिंग बट x इंटरसेप्ट, ठीक। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि कभी कभी कोई एक जो कर्व है, इट इज नॉट अ लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन है तो आप इस फॉर्मेट में लेकर जाएंगे तो आपको एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट मिलेगा। और स्ट्रेट लाइन नहीं है, मान लीजिए इस तरीके से कर्व है, दिस इज कर्व, ये एक कर्व हो गया। अब ये कर्व का एक्स इंटरसेप्ट कौन सा है? यहाँ पर है, दिस इज एक्स इंटरसेप्ट। कर्व का इक्वेशन आपको मालूम है, कोई अलग टाइप का इक्वेशन होगा, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 वगैरह, या फिर चलिए जो भी होगा 3/2 होगा, वट एवर, इस टाइप का कुछ इक्वेशन होगा, क्यूबिक हो सकता है, वट एवर। अब इस इक्वेशन में आप, अगर आपको ये पॉइंट निकालना है, दिस पॉइंट इज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट मतलब वेयर द कर्व कट्स द एक्स एक्सिस, देन इट इज एक्स इंटरसेप्ट। तो अगर आपको इसे ढूंढना है तो आपको क्या करना होगा? यू विल हैव टू पुट y इज इक्वल टू 0। किस चीज के लिए? एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए। वही अगर आपको y इंटरसेप्ट ढूंढना है, ये y इंटरसेप्ट हुआ, इसे अगर ढूंढना है तो आपको करना होगा, इस इक्वेशन में आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0, तो आपको मिल जाएगा y इंटरसेप्ट। क्लियर? तो हम ये लॉजिक भी यूज कर सकते हैं, जस्ट टू फाइंड आउट x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट।
ये याद है आपने कहाँ पर किया था? ग्राफिकल मेथड, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ग्राफिकल मेथड थी। इसमें हम इस तरीके से लिखते थे, फिर x की वैल्यू y की वैल्यू यहाँ पर लेकर के आप लाइन प्लॉट करते थे। सो इट इज द सेम टेक्निक, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए अब इस लाइन को हम ड्रॉ करते हैं। तो x कितना है 2, तो यहाँ पर जैसे 1 हो गया तो इधर मैंने ले लिया 2, एक पॉइंट तो ये हो गया x इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट आपका 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, बोले हम अप्रॉक्स निकालेंगे, लेकिन फिर भी जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा अगर आप अप्रोक्सीमेटली निकालते हैं तो आपको नेचर ऑफ द लाइन भी पता चलता है, आंसर भी आप टैली कर सकते हैं कि हाँ बराबर है या नहीं है, एक थोड़ा सा अंदाजा आ जाता है उससे। तो मैंने ये वाला एक्स इंटरसेप्ट कितना है 2 है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 2,0, वाई इंटरसेप्ट कितना है 6, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0,6, एंड दिस इज द लाइन। कौन सी लाइन? गिवन लाइन, दिस इज द गिवन लाइन, या फिर आप इक्वेशन भी लिख सकते हैं 3x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब जो रिक्वायर्ड लाइन है हमारी, रिक्वायर्ड लाइन, इट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड इट also bisects the portion of the line। bisects the portion of the line मतलब इन दोनों का जो बाइसेक्शन होगा यहाँ पर, ये दोनों पोर्शन आपके इक्वल हो जाएंगे। सो दिस इज मिड पॉइंट ऑफ द लाइन m, एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड लाइन। ये रिक्वायर्ड लाइन है हमारी। रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, बाइसेक्टिंग द पोर्शन। अब इस रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन अगर आपको ढूंढना है तो किस तरीके से मिल सकता है? तो यहाँ पर देखिए एक पॉइंट आपको मालूम ही है, ओ मतलब क्या? 0 0, ठीक है। दूसरा पॉइंट कौन सा है? यम, इसके कोऑर्डिनेट हमको ढूंढने पड़ेंगे। और पॉइंट यम के कोऑर्डिनेट कैसे मिलेंगे, कौन बताएगा? बाय यूजिंग व्हिच फार्मूला? बराबर है, विद्या अपेक्षा इवन वैष्णवी इज करेक्ट। ठीक है, तो मिड पॉइंट फार्मूला से आपको यम के कोऑर्डिनेट मिलेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूं बाय मिड पॉइंट फार्मूला। फार्मूला आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यम x1 कॉमा y1, क्योंकि यम को हम क्या बोलेंगे? x1 y1 बोलेंगे, या फिर चलिए आप सीधा xy भी लिख दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कि यम के कोऑर्डिनेट बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। नाउ यम इज द मिड पॉइंट ऑफ a एंड b। उसका फार्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस 2 अपॉन 2, और दूसरा होगा 6 प्लस 0 अपॉन 2। सो इट इज नथिंग बट 2 अपॉन 2 दैट इज 1 एंड 6 अपॉन 2 दैट इज 3। तो ये कोऑर्डिनेट हो गए 1,3, जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया। अब हम 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर सकते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म हम यूज कर सकते हैं। So equation of line passing through 0 0 and 1 3 is, अब 0 0 हो गया आपका x1 y1, ये हो गया x2 y2। So it is how much? What is the equation of line in 2 point form? Y minus y1 upon y1 minus y2 is equal to x minus x1 upon x1 minus x2. So this is y minus y1 is 0, 0 minus y2 that is 3, x minus x1 is 0, 0 minus x2 is 1. So you got y upon minus 3 equal to x upon minus 1. दोनों साइड से माइनस माइनस कट हो गया, इट मीन्स 3x इज इक्वल टू y और 3x minus y is equal to 0.